There is a steering wheel that directs the right path throughout our lives. Let us unite our minds and with the land before Goddess Saraswati to start our prayer.
मातृ प्रणाम 1 2 3। हम सबके समक्ष जो महानुभाव उपस्थित हैं, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, सर्वप्रथम मंच के बीच में है आप श्रीमान उमेश कुमार जी, DEO नौतन। ठीक है, उनके बगल में अपने विद्यालय के माननीय मैनेजर डॉक्टर OB गुप्ता जी, अपने विद्यालय के मैनेजर के ठीक बगल में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार और प्रधानाचार्य के बगल में श्री मनोज कुमार मिश्र, STNC CBSE, और माननीय DO साहब के ठीक बगल में श्री अवधेश प्रसाद, प्रभारी प्रधानाचार्य प्राथमिक खंड। समय है सम्मानित करने का। सर्वप्रथम अपने विद्यालय में नौतन प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमान उमेश कुमार जी उपस्थित हैं। जो साहब को सम्मानित करेंगे, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे और साथ ही साथ पुष्प देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं अपने विद्यालय के माननीय मैनेजर CBSE के अनुसार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर OB गुप्ता जी को सम्मानित करने के लिए मैं अपने विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य को मैं आमंत्रित करूंगा। आप उन्हें पुष्प गुच्छ और फिर आगे के कार्यक्रम के लिए इन हाउस ट्रेनिंग पर प्रकाश डालने के लिए मैं अपने विद्यालय के STNC श्रीमान मनोज कुमार मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ठीक ही कहा गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन एक फैले हुए उनके पंख बताते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। Since a long time, education is most powerful and efficient way to transform human being as a human resource. Therefore, in this present world scenario, we all have to be complete this changing world, and for this training induce a teacher to calculate fast, apply fast, and imply fast their visions to understand the possibility and capabilities of students to make a better human resource which can be transformed India in next few years as a Vishwa Guru. Thus, CBSE also imposed a compulsory 25 hours in-house training and 25 hour CBSE online training. Training always made us think differently, watch differently, and apply different resources to differently able students. It is believed that every student with there is some special feature born on this earth, and we have to be take the full possibility and optimum utilization of that resources to develop India or a country. Therefore, training is a very way to nowadays if education were not reach to the mass population in India, 100% literacy not achieved still, then the
main reason behind it, that is we are not marketized the education through this training, and our skill India formation aspect, our Pradhan Mantri, Honorable Prime Minister Narendra Modi says that local for vocal, we have to become local for vocal, and for this we have to utilize our local resources as well as human resources in a proper way to get the benefits. Training is a way to mechanize, technologize and marketize the overall education to reach out its optimum benefit. So at present scenario, teachers need to have the ability to make overall development of the students in their own ways. The whole day we still here enjoy, and it may be possibility that we took away a lot of uniqueness and ambience knowledge which can be applied in coming times in our classrooms and make a better education environment in our school. The whole day we conducted a 5-hour session here, and all topics are very referensive topics which is needed to implement in our school and education system. So you hope that a very fantastic day was going on the whole day, and we all celebrate and enjoy the knowledge and information which is given by our resource person in various ways. We have to be tackle these all things to practice and apply it in classroom, and a major aspect of this training, that is after all we have to achieve our targets. Thus in first session we understand about what is mental health, because the present world is suffer from various mental problems. So mental position, mental upliftment is very necessary for children, especially that they can produce more and more. Mr. Satya Prakash was our first resource person when come up on a stage and deliver the promoting mental health. प्राध्यापक प्राचार्य महोदय और आए हुए हमारे डायरेक्टर साहब जिनका यह विद्यालय का अभिनंदन दिए हैं लाए हैं, और उपस्थित हमारे जितने भी आचार्य हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो बुरा नहीं मानिएगा, सभी शिक्षक भी कह सकते हैं, और बहुत उधर शिक्षिकाएं लोग भी हैं, इधर शिक्षक लोग भी हैं, भैया जी या बहन जी जो भी कहा जाता है, तो कहीं से हमको गलती हो सकता है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार और धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों के बीच डॉक्टर विनोद बाबू हमें आमंत्रित किए थे। हमको ये सब बात मालूम नहीं था, अचानक ये सब यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। चलिए धन्यवाद। तो बहुत यह जो आपका मीटिंग कहिए, बैठक कहिए, सदन कहिए, जो आपका चल रहा है सीबीएसई का है, बदलाव हो जाता है और फ्रेश भी हो जाते हैं, और शिक्षा के जगत में आप लोगों का बहुत अग्रणीय भूमिका है। इसलिए सभी को मैं फिर एक बार गुरुजनों को कोटि कोटि से नमस्कार करता हूँ। और इस तरह से माहौल सर बताए कि कोरोना काल में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ, और सब लोगों को दिक्कत हुआ, मालूम है। सब शिक्षक बच्चे ज़्यादा इसमें हरास बच्चे हुए, तो अब उन लोगों को क्षतिपूर्ति किया जा रहा है। हम लोगों के भी सरकारी विद्यालय में कैचा कोर्स चलाकर उन लोगों को जो पिछड़ गए थे बच्चे, उनको पढ़ाया जा रहा है। और जो आज आपका ट्रेनिंग चल रहा है, उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट में भी ट्रेनिंग चल रहा है, सभी शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
गैर आवासीय एक दिवसीय है, गैर आवासीय है, लेकिन उन लोगों को 9 बजे से 5 बजे तक ट्रेनिंग चल रहा है। सभी मैंने पूरे बिहार में यह ट्रेनिंग चल रहा है। इसके पहले तरंग का ट्रेनिंग हुआ, चहक का ट्रेनिंग हुआ और अभी चल रहा है कोविड का। उसमें आपदा पर ही बताया जा रहा है। ट्रेनर भी हैं, सब लोग पटना गए थे ट्रेनिंग लेने के, CRT के द्वारा यह कराया जा रहा है। तो मेरे यहाँ भी 9 बजे से 5 बजे तक ट्रेनिंग चल रहा है। और देखिए CBSE के द्वारा भी आप लोगों का जो ये ट्रेनिंग बैठक या जो भी चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें बच्चों की बहुत भलाई होगी, बहुत लाभ होगा, जिससे कि आपदा से बचने के लिए उन लोगों को बताया जा रहा है। शिक्षक लोगों को पूरे आपदा के बारे में बताया जा रहा है। वह जाकर अपने बारे में अपने विद्यालय में बताएंगे और वह बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होगा। और चूँकि हम लोगों को भी बहुत व्यस्तता रहता है। अभी देखिए सर बुलाए हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे हम एकदम समय से आ गए हैं, लेकिन और जगह से फोन आ रहा है, यहाँ चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, 3 को सेंटर मेरे यहाँ भी चल रहा है। हमें CS बनाया गया है, केंद्र शिक्षक बनाया गया है BPSC की परीक्षा में, तो उसको भी संचालन करना है और इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन परीक्षा लेना है। चूँकि पहले क्वेश्चन से नोट हो गया था, इसमें थोड़ा परेशानी ज़्यादा है। पूरे जिला के प्रशासन इसमें लगे हुए हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। और सर भी कल के मीटिंग में, DM सर के मीटिंग में हम लोग भी थे, तो थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता है, इसीलिए मैं फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आप लोग से मैं अच्छी बातें शेयर करूँगी। धन्यवाद। इस विद्यालय के विद्वत परिषद के अधिकारी और काफ़ी लंबे समय से अपना जो स्थानीय MJK कॉलेज है उसमें आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रसायन शास्त्र के, और बड़े ही सौभाग्य की बात है पूर्व में भी आप हमारे विद्यालय में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किए हैं और वर्तमान में आप मैनेजर के रूप में अपने विद्यालय में हम आचार्यों का, प्रिय बहनों का मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर OP गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, आखिर स्वरूप हम आचार्यों और DD के डॉक्टर OP गुप्ता जी। इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं, आपका सादर अभिनंदन। और जैसा कि आज हम लोग उपस्थित हुए हैं हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है ये आपको पहले से अवगत कराया जा चुका है और पूर्व में भी आपने इसमें भाग लिया है। लेकिन वर्तमान जो हम समस्याएं फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं को शिक्षक छात्रों के बीच में कैसे ले जाएंगे और कैसे उनको उन्मुक्त करेंगे, उनको ऐसा ज्ञान देंगे ताकि वे इन समस्याओं का समाधान स्वतः निकालें और साथ ही साथ उन समस्याओं से घबराएंगे। जैसा कि आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ। आपको मालूम है कि CBSE सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, पढ़ाई उसका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक हॉलिस्टिक अप्रोच भी। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब छात्र में स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, एजुकेशन देना है स्ट्रेसलेस। इसके लिए हम किस तरह से प्रयत्नशील हैं? छात्र में एजुकेशन देना है लेकिन भविष्य को सुरक्षा देते हुए, और इसी के लिए CBSE ने अभी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, जैसे वोकेशनल कोर्स क्लास 6 से ही शुरू करने का प्रोग्राम, जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो, वोकेशनल यानी व्यावसायिक कोर्स हो, और उसके प्रति बच्चों में धीरे धीरे एक ज्ञान पेनिट्रेट करना है उसके अंदर कि आपका भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकता है। और उसके साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच पर जोर दे रही है, बिल्कुल दे रही है। इस होलिस्टिक अप्रोच में हम ये शामिल कर रहे हैं कि वो इनोवेटिव हो, हम ये शामिल कर रहे हैं कि जॉब ओरिएंटेड हो,
कल्चरल एक्टिविटीज भी हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी हो। क्यों? ये मान लिया गया है कि आदमी सब हेरिटेज के द्वारा हम आने वाली समस्याओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता को, उसकी सहिष्णुता को हम धीरे धीरे कैसे प्रमोट करें, कैसे आगे ले जाएं, ताकि वो भविष्य में अपने को सुरक्षित महसूस करे और आगे बढ़ सके। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और ये बात कोटेड है। क्यों कहना चाहूंगा कि जीवन में हम लोग कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन क्या, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पूरे जीवन की। ये जीवन हर क्षेत्र में अनुशासन देता है, और अनुशासन ही हमें थोड़ा सा अपने रास्ते पर चलने के लिए धीरे धीरे तैयार करता है। एक बार एक बच्चा स्वामी विवेकानंद से, जो 14-15 साल का बच्चा था, और स्वामी विवेकानंद के पास गया, क्योंकि उसको जानकारी हो चुकी थी उस समय स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया था उसका प्रभाव लगभग दुनिया के हर कंट्री में पड़ा था, और हर देशवासियों ने सोचा था कि भारतीय अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म के उस गुण से प्रभावित होकर के एक बच्चा स्वामी विवेकानंद के पास गया, स्कूली बच्चा था, 14-15 साल का, और उसने कहा कि मुझे आपसे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। विवेकानंद ने कहा ठीक है, और उसको 1-2 दिन के लिए कहा कि ठीक है, 2 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद फिर बच्चा आया। यानी ये लौटाना उनका सिर्फ ये था कि उसकी जिज्ञासा का स्तर कितना। तीसरे दिन जब बच्चा लौट के आया, तो स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान तो दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा सा गेम यानी स्पोर्ट्स में कोई भाग लेते हो, कोई खेल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, अगर खेलते हो तो थोड़ा सा उसमें भी सीखो और जाके थोड़ा सा खेलो, उसके नियम देखो, और तब मेरे पास आओ। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था। हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में एजुकेशन का एक पार्ट होता है खेल, हम उसको एजुकेशन से अलग नहीं कर सकते, उसी का वो हिस्सा मान के चलते। और उस हिस्से में क्या शामिल है जो उसे हिस्सा मानते हैं? क्या स्वास्थ्य के लिए जरूरी है? नहीं, स्वास्थ्य के साथ साथ वो खेल हमें डिसिप्लिन की अद्भुत शिक्षा देता है। ये डिसिप्लिन हम बच्चों में उस खेल के माध्यम से डालते हैं। खेल एक अच्छा माध्यम है। आप फुटबॉल बच्चे को खिलाते हैं, और उसका बॉल अगर बाहर चला जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, बाहर चला जाता है, तो उसको आउट करा देते हैं। यानी बच्चा खेलते समय अपना संतुलन बिल्कुल बनाए रखता है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, कहीं मैं फाउल ना हो जाए। और उसके लिए बिलाते हम वहाँ जजेस रखते हैं, रेफरी रखते हैं। यानी बच्चे में इस बात का, खेल के साथ साथ इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रहता है कि हमको जो खेल खेलना उसमें डिसिप्लिन मस्ट है। अगर डिसिप्लिन से थोड़ा सा चुके तो हम फील्ड से बाहर हो जाएंगे। खेल देखने वाला विद्यार्थी भी उतना ही डिसिप्लिन होता है, क्योंकि उसके डिसिप्लिन को वो निरंतर देख रहा है कि गलत तो नहीं किया। यानी कुल मिलाकर के विवेकानंद का ये ज्ञान उसको इसलिए दिया गया कि जब जीवन में तुम्हारा डिसिप्लिन आ जाएगा तो गीता का ज्ञान तो स्वतः आ जाएगा। मतलब हम जो कुछ करते हैं उसको करने के लिए हम पात्र को तैयार करते हैं। अगर पात्र हमारा तैयार हो गया तो हमारा निकाल, हमारा काम स्वतः होना शुरू होता है। और इस होलिस्टिक एजुकेशन स्पेस का भी मोटो यही है कि बच्चों को तैयार करें। पिछले 2 सालों में एक स्ट्रेस से हमने जूझा है, बच्चों के साथ साथ हमने भी जूझा है, वो था कोविड। लेकिन आने वाला समय और भी समस्याएं लेके आ रहा है, और सबसे बड़ी समस्या है इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की। और ये पर्यावरण की समस्या है पूरी दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया में एक साथ हो रही है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं ज्यादा कहीं कम, और इससे सारे प्रभावित हो रहे हैं। इससे हम कैसे अपने चुनौती का सामना करें, उसके लिए कैसे तैयार करें, और इसी के लिए एजुकेशन कहता है मस्ट
बी इनोवेटिव, बच्चों को नवाचारी की तरफ ले जाए, नवाचारी की तरफ ले जाए, मतलब बच्चों को सोचने की क्षमता को विकसित करें, कि भविष्य लड़ने की क्षमता अभी से विकसित करें, बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि भविष्य में क्या उसकी तैयारी योजना वो स्वतः तैयार कर ले। और हमें इस बात को ध्यान देना है कि बच्चे को रटने वाला नहीं बनाना है, याद करने वाला नहीं बनाना है, समझ की तरह बनाना है, समझ को प्रेरित करना है, समझ को डेवलप करना है। यानी कोई चीज हम समझ के बनाए, यानी समझ की प्रधानता ज्यादा है और रटने की प्रधानता को घटाया गया, यह हटाया जाता है। इसलिए वैश्विक रूप से पूरी दुनिया में प्रयास चल रहा है, हिंदुस्तान में भी प्रयास चल रहा है, और हमारा ये प्रयास है कि छात्रों को उनको अनुकूल वातावरण कैसे प्रदान करें ताकि वो आगे आसानी से पढ़ सकें। बीच-बीच में बहुत सारे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम चले, आवश्यकता होगी तो हम भी समय देंगे, लेकिन इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। आप राष्ट्र निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि छात्र को तैयार करना इस राष्ट्र को तैयार करने के बराबर होता है। तो आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से और आचार्य दीदी जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया। अभी अपने बीच पहले ही बता चुके हैं कि खंड शिक्षा पदाधिकारी की भी काफ़ी व्यस्तता है, इनसे मैं निवेदन किया था, कल ही परिचय भी हुआ कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसलिए कल बैठक में इनसे परिचय हुआ। और भी आपके विद्यालय में इससे पूर्व भी आए हुए हैं वीरेंद्र मेहता जी के समय में। In-house training, and for this in-house training, once again we are present our gratitude to Mr. Tarun Kumar, the COE Patna, and who gave us that type of opportunity we have to show our efficiency and our possibilities for a betterment of education environment and students. Therefore, for the very first session, I would like to invite Mr. Dr. Satya Prakash Jha, and his topic is very crucial and critical topic nowadays, because he is going to deliver their speech and their thoughts and ideas over mental health promoting, and which is the most several problem nowadays. And by their thoughts and ideas, we can improve child's mental status. So I welcome Mr. Satya Prakash Jha. Please come. हरिओम। हरिओम। आज CBSE के द्वारा हमारे विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर वतोसेना विद्या में 5 घंटा हाउस ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। इस ट्रेनिंग शब्द अर्थात प्रशिक्षण से हमें नवाचार या नवोन्मेषी चीजें सीखने का सौभाग्य मिलता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी चीज में प्रशिक्षण करते हैं उनमें शिक्षण की पद्धति जो है वो एकाएक बढ़ती जाती है। इसीलिए हमारे शिक्षण की पद्धति किस प्रकार से बढ़े, कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, इस पर चिंतन करना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी को नमस्कार, और अपना जो आज टॉपिक है मेंटल हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, अर्थात बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में विद्यालय की भूमिका। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब है विद्यालय में किस प्रकार से बालकों के बीच में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले,
इनके कई कारक हैं। उन्हीं में से सर्वप्रथम कारक है स्वच्छ वातावरण, अर्थात स्वच्छ वातावरण किस प्रकार से विद्यालय के अंदर किया जाए जिससे बालकों में मानसिक एवं शारीरिक विकास, क्योंकि जब तक बालकों के अंदर मानसिक एवं शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक शिक्षा का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। बालकों के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है। इसीलिए शारीरिक के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, अर्थात शरीर का जो है माध्यम वह सर्वप्रथम है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को जब हम बढ़ावा देंगे तो हम कोई ना कोई चीज जरूर सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर है विद्यालय का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि बालकों का समस्त रूप से शारीरिक और मानसिक विकास। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज में यदि कोई स्वस्थ नहीं रहता है, वह अपाहिज होता है, तो उनकी जो गति है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसी तरह शिक्षकों को भी प्रतिदिन पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि शिक्षक का भी दायित्व होता है कि हमको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी, यह नहीं जो सिर्फ एक दुकानदार की भांति गए दुकान खोल गए। तो इसीलिए उसके लिए हमको पढ़ना भी है, चाहे 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए विषय से संबंधित। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, समुचित विश्राम, ठीक समय पर रोग का उपचार आदि आवश्यक है। अब शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार से बढ़ेगा तो उसके लिए है संतुलित आहार। आहार का जो हमारे आहार विशेषज्ञ है या न्यूट्रिशियन सब आजकल बहुत बाजार में उपलब्ध होते हैं, उनके द्वारा जो कैलोरी उपयुक्त एक चीज दिया जाता है फूड चार्ट, उस चार्ट के अनुरूप उनको बच्चे को या किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। उससे यदि अत्यधिक करेंगे तो आप रोग का शिकार होंगे, उससे कम करेंगे तो पर भी रोग का शिकार होंगे। इसीलिए समुचित भोजन, संतुलित आहार, क्योंकि जब आहार संतुलित रहेगा तो मन भी संतुलित रहेगा। इसलिए स्वच्छ तन में स्वच्छ मन का विकास होता है। ऐसा नहीं है जो हम अस्वस्थ हैं और हमारा विकास वैसे हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि शारीरिक स्वास्थ्य का जो महत्व है वह बालक के मन एवं मस्तिष्क पर पड़ता है, क्योंकि वातावरण हमें बहुत प्रभावित करता है। यदि हम गलत वातावरण में हैं, संसर्गे गुना दोषा, यदि मेरा संसर्ग संपर्क किसी गलत व्यक्ति के साथ में है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। यह निश्चित है एवं सत्य है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। चोर के साथ हम रहेंगे तो चोर कहलाएंगे, चाहे हम चोरी करें या नहीं करें। इसीलिए सबसे पहले है हमको संसर्ग किस प्रकार से होना चाहिए, तो बच्चे का भी संसर्ग किस प्रकार से होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण शिक्षा के अनुरूप है या नहीं है, उसका वातावरण भी उस प्रकार होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि है तो सर्वप्रथम हम लोग नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, जिनमें माँ सरस्वती की वंदना से लेकर शांति मंत्र तक, अर्थात इष्ट विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती और प्रकृति का पूजक सत्य शांति मंत्र। इसलिए हम एक तरफ सरस्वती माँ और एक तरफ प्रकृति, दोनों को समन्वित करके हम बच्चे का यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर में उनको शिक्षा देने में प्रारंभ करते हैं। शिक्षा का समुचित विकास इसी तरह होता है, क्योंकि शिक्षा शिक्ष धातु से बना है और शिक्ष का अर्थ होता है शिक्षण करना, और एजुकेशन शब्द भी इंग्लिश का है। एजुकेशन का भी अर्थ होता है आगे की ओर विकास करना। तो बच्चे किस प्रकार से विकास करें, मेरा विद्यालय किस प्रकार से विकास करे, अध्यापक किस प्रकार से विकास करे, हमको यही सोचना चाहिए हमेशा, यह नहीं तो किसी तरह काम चले जा रहा है। अतः विद्यालयों का यह कर्तव्य है कि उन साधनों को अपनाए जिनके द्वारा बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य। अब विद्यालय को भी उस प्रकार का संसाधन उपयोग करना चाहिए जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य यह तीनों शरीर का महत्वपूर्ण चीज है।
विद्यालय में नियमित शारीरिक शिक्षा, भोजन, विश्राम, खेलकूद, व्यायाम, स्वच्छता और रोगों के उपचार आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। और विद्यालय में इतने महत्वपूर्ण संगठन होना चाहिए जिससे बच्चों का समुचित विकास हो, उनमें रोज कुछ न कुछ सीखने की ललक हो, जिज्ञासा हो, और जब जिज्ञासा बढ़ेगा तो बाल विद्यालय के अंदर में स्वच्छ वातावरण का प्रभाव एकाएक बढ़ेगा, और जब स्वच्छ वातावरण का प्रभाव बढ़ेगा तो जरूर है शिक्षण का प्रभाव भी बढ़ेगा। इसीलिए सर्वप्रथम संतुलित आहार, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, मन एवं स्वच्छ के लिए स्वच्छ वातावरण, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक कहावत भी है हमारे मिथिलांचल में, जो हिंदू बने ऊंचे और मुसलमान बने नीचे, अर्थात हिंदू जितना ऊंचा संस्कार अपना रखेगा वह उतना अधिक बढ़ेगा, और मुसलमान जितना नीचा संस्कार रखेगा वह उतना आगे। तो यहाँ संस्कार से, स्वच्छ वातावरण से हमको किस प्रकार से स्वच्छता बनाना चाहिए, यह नहीं जो हम किसी तरह रह रहे हैं, किसी तरह कर रहे हैं, यह इसके लिए हमको स्वच्छता पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमारे मनुस्मृति में भी एक श्लोक है कि अद्भिधिकानि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन। का शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्यवाणी से होती है, जीवात्मा की शुद्धि के मार्ग विद्या और तप है, और बुद्धि की स्वच्छता ज्ञान के अर्जन से होती है। इसलिए जब हमको ज्ञान बढ़ाना है तो बुद्धि की स्वच्छता जरूरी है, और बुद्धि की स्वच्छता के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन है ग्रंथों को पढ़ना। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारक है शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार। अब शिक्षकों का कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के प्रति किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका व्यवहार गलत है तो बच्चे नटखटी काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह बालपन है, उनमें स्वभाव है, और उस स्वभाव के कारण वह आपको रिझा सकते हैं, पीठ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले है जो विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति कैसे होगा, तो जब तक हम उसमें भेदभाव नहीं रखेंगे, हमको समान रूप से, समानता रूप से सभी को देखना है, चाहे एक बच्चे है कि 60 बच्चे, सभी को समानता के साथ देखना। यदि उसमें कुछ भी असमानता हुआ तो जरूर है बच्चे आपका उपहास करें, क्योंकि और शिक्षकों का भी दायित्व होता है कि कक्षा कक्ष में बच्चे को हर जाति, मजहब आदि से दूर करके रखना चाहिए। वहाँ यह नहीं पूछना चाहिए कि आप किस जाति से हैं, हम किस जाति से, यानी वहाँ शारीरिक गतिविधि आपका है शिक्षण देना, कक्षा कक्ष में और किसी बातों का उल्लेख नहीं करना। यदि आप उल्लेख करते हैं तो हो सकता है दूसरा बच्चे आपको नीचे दृष्टि से देखेंगे, और नीचे दृष्टि से जब देखेंगे तो आपका उपहास होगा और आपका अनुशासन तोड़ेगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में विद्यार्थी शिक्षक का कहना नहीं मानते हैं, और बार बार आप करेंगे तो आपका अनुशासन भंग होगा, क्योंकि आपका कहना नहीं मानेंगे, आपके विपरीत वह कार्य करेंगे, जिससे आपको क्या कहते हैं दुख उत्पन्न होगा। दुख उत्पन्न होगा तो हो सकते हैं आप कुछ उनको शारीरिक, और यदि कक्षा कक्ष में इस तरह की आदतें किसी भी शिक्षक के पास है तो हो सकता है कि उसमें रहने वाले अधिकांश बच्चों के मन को दुखी कर दे। इसलिए कभी भी कक्षा कक्ष में जो है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना चाहिए, या नहीं जो किसी भेदभाव पूर्ण की नीति वहाँ उत्पन्न हो, जिससे संकट उत्पन्न हो, क्योंकि यह संकट कक्षा कक्ष तक ही नहीं रहती, या बाहर भी जा सकती है, और जब बाहर जाएगा तो आपका छवि तो गिरेगा ही, लेकिन संस्था, कोई भी संस्था होता है वह अपने उस आदर्श पर चलता है, उनका उक्ति होती है, उनका कुछ निर्णय होता है, उनके निर्णय में भी कुछ कमी होती, इससे आपका कम घाटा लेकिन संस्था का ज्यादा घाटा हो। तीसरा है संतुलित एवं उचित पाठ्यक्रम। अब किस प्रकार का पाठ्यक्रम विद्यालय में होना चाहिए, महाविद्यालय में होना चाहिए, विश्वविद्यालय में होना चाहिए, जिससे बच्चे को बोझ न लगे, क्योंकि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम मार्ग होता है। जैसे हम बेतिया से अरेराज जाते हैं तो
जगह जगह लिखा रहता है 35 किलोमीटर अहिराज, कटेला 3 किलोमीटर, उसके आगे जगदीशपुर 15 किलोमीटर। तो वह क्या हुआ, एक प्रकार का संकेत है, वह हमको दिखाता है, हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो अब हम अहिराज पहुंचने वाले। उसी तरह पाठ्यक्रम है, बच्चे का यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का संकटक है, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम कुछ भी असंतुलित रहा तो बच्चे का विकास नहीं होगा, बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में रुचि नहीं लेंगे। इसीलिए हमको पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा देना चाहिए, पाठ्यक्रम के विपरीत नहीं। यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम संतुलित हो, जिससे कि उनके ज्ञान में अपेक्षित वृद्धि हो सके। पाठ्यक्रम संतुलित रहेगा तो बच्चे का ज्ञान का स्तर भी बढ़ेगा, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो उसको पढ़ने में भी रुचि जगेगी, और पढ़ने में जब रुचि जगेगी तो स्वतः उनका विकास होगा। सिर्फ आप है एक सहायक, करने वाले होते हैं बच्चे, क्योंकि शिक्षक सिखाने वाले होते हैं और करने वाले होते हैं बच्चे, तो उनके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव न पड़े। अब हम असंतुलित पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो उसके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और विपरीत प्रभाव आगामी क्रियाएं में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ अलग कार्य भी हम करते हैं, जिनसे बच्चे का विकास। जो बच्चे पढ़ने में नहीं रहते वह संभाषण में होगा, दौड़ में होगा, खेल कूद में होगा, नाटक में होगा, अभिनय में होगा। यह सभी क्या है, पाठ सहगामी क्रियाएं। यह सहगामी क्रियाएं विद्यालय स्तर पर होनी चाहिए, और जब विद्यालय स्तर पर होगा हो सकता है बच्चे का कुछ न कुछ क्षेत्र में अलग विकास होगा, क्योंकि हमारे सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज माननीय सचिन तेंदुलकर जी मैट्रिक फेल, लेकिन उनकी रुचि क्रिकेट खेलने में बचपन से, और वह ऐसे बादशाह बने जो भगवान की उपाधि से विभूषित किया गया। उनको भगवान सचिन तेंदुलकर जी का नाम अनुचित नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के क्षेत्र में वह ईश्वर के समान है। इसीलिए हो सकता है कोई बच्चे अभिनय में हो, कोई गायक में हो, कोई कुछ में हो, इससे आपसे ज्यादा बच्चे का विकास होगा। अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों के रुचि का विकास किया है। रुचिजन अध्ययन में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का समुचित विकास होता है। अब जैसे ही किसी भी चीज कोई अच्छा लगे तो सतह बात है, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। पाठ्यक्रम यदि समुचित रहेगा तो बच्चे का पढ़ने में रुचि कर बढ़ेगा, और जब रुचि बढ़ेगा तो उसका ज्ञान का स्तर भी ऊंचा होगा। आजकल इसीलिए हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, जिसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षाएं कम और सैद्धांतिक शिक्षाएं ज्यादा। इसीलिए क्योंकि सिद्धांत और प्रयोग यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब 2020 में नई शिक्षा नीति लाया गया तो उनमें यही बदलाव है, और यह शिक्षा नीति से हमें हो सकता है तो हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि मेरा सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित नहीं है तो हम विश्व गुरु की कल्पना नहीं कर सकते। यह पाठ्यक्रमेतर क्रियाओं के द्वारा बालकों का शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास होता है, और सर्वप्रथम उन्हें नागरिकता का बोध होता है, तो हम भारत देश के नागरिक हैं। इस प्रकार का जब बोध होगा, ज्ञान होगा, तो बच्चे का विकास अवश्य होगा। अब अगला पॉइंट है जो बाल केंद्रित शिक्षण विज्ञान। अब शिक्षण विज्ञान किस प्रकार होना चाहिए, सदैव बालकों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको बालकों का विकास करना है, बच्चे का विकास करना है, यह नहीं जो किसी दूसरे का। तो प्रायः ऐसा होता है कि बालक चालू शिक्षा विधि की नीरसता के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। अब किसी भी प्रकार का शिक्षा विधि होता है तो नीरसता, उसमें रस नहीं होगा। जब रस नहीं होगा तो मन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। सभी को आनंदित वातावरण चाहिए, आनंदित पद्धति चाहिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, क्योंकि उनमें भी आनंद का अनुभव होता है, और पढ़ाई भी एक प्रकार का आनंद भी है। यह नहीं है तो किसी प्रकार का वस्तु है जो खरीद करके हम रख लेंगे। जब आनंद बढ़ेगा तो बच्चे का स्वतः विकास बढ़ेगा। रुचि कम हो जाती है, यदि आप अरुचिकर देंगे तो शिक्षा का विधि जो है वह उनके लिए रुचि कम हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण विज्ञान अपनाएं। अब शिक्षण विज्ञान जो हो वह हमेशा बाल केंद्रित, इसके लिए बहुत विधि है।
प्राचीन से लेके मॉडर्न विधि तक, और उसी विधि में से कुछ 2-3 विधि है जिसका मैं नाम यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। प्रथम है खेल विधि। अब खेल विधि क्या होता है? खेल के माध्यम से शिक्षा देना। जैसे प्राचीन समय में गांव भर में 100, 200, 400 प्रकार का खेल किया जाता था। उससे क्या होता था? बच्चे का अंक एवं अक्षर दोनों का बोध होता था, और यही सबसे बीज होता है पढ़ाई का। इसीलिए खेल में, अब खेल में कैसे दे, तो यहाँ पर एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है ए, यह हुआ अंक का ज्ञान, और यहाँ पर है ए, यह हुआ शब्द का ज्ञान। इनसे क्या होगा? बच्चे का अंक और शब्द अक्षर दोनों का बोध होगा, और जब अक्षर का बोध होगा तो बालक स्वतः आगे बढ़ेगा। इसके लिए खेल विधि में बहुत तरह के हमारे विद्यालय में भी क्रियाविधि कराई जाती है, और इसके जनक, खेल विधि के जनक फ्रोबेल को माना जाता है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे फ्रोबेल। उन्होंने कहा जो छात्र का जो खेल विधि से क्या होता है? स्वशासन होता है, क्योंकि अनुशासन जो है वह बढ़ता है। किसी भी चीज में अनुशासन की बहुत जरूरी है। यह नहीं है कि किसी प्रकार का अनुशासनहीनता हो। इसीलिए प्राचीन समय में भी हमारे भर्तृहरि महोदय ने अपने वैयाकरण महाभाष्य में कहा है जो शब्दानुशासनम, शब्द में भी अनुशासन होना चाहिए। हम किस प्रकार से बोले, किसी अगले को दुख ना हो। तो जब हम शब्द का भी अनुशासन करेंगे तो हो सकता है जो वहाँ पतंजलि महोदय ने कहा है, और यहाँ पर यह भी कह रहे हैं छात्र स्वशासन। तो हमारे यहाँ पद्धति है घर के मुर्गी दाल बराबर, अर्थात उनके बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मॉडर्न जो विदेशी विद्वान हुए उनको ज्यादा अपनाया गया। तो यही मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी है। सभी बातों का उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में, ऐसा कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें यह बात उल्लेख नहीं। दूसरा है स्काउटिंग। विद्यालय में भी स्काउटिंग कराया जाता है, यह भी एक खेल विधि का प्रकार है। गार्ड गाइडिंग, विद्यालय उत्सव भी होना चाहिए, जिससे बच्चे, अभिभावक, आस पड़ोस के लोग को शामिल होने का मौका मिले। पर्यटन, सबसे शिक्षा का जो खेल विधि का माध्यम है वह पर्यटन है। उनसे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण का पता चलता है। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में कहीं घुमाने के लिए लेंगे, भौगोलिक क्षेत्र में कहीं घुमाने के लिए बच्चे को लेंगे, तो उससे बच्चे का चहुँ और विकास होता है। वह बातें ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा घूमने पर जब जाएंगे तो बच्चे का मस्तिष्क ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा काम करेगा तो बच्चे का विकास स्वाभाविक रूप से होगा। अब दूसरा है प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि वह है जिसमें किसी समस्या या उद्देश्य के लिए हम स्वाभाविक वातावरण में कार्य करते हैं। उसमें उद्देश्य निहित है। यह उद्देश्य है कि बच्चे यह काम करेंगे, और कब काम करेंगे? तो बच्चे का मन में जब यह बोध होगा, तो वह बोध कौन कराएगा? मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक होते हैं। शिक्षक निर्देश देंगे और बच्चे उसका अनुपालन करेंगे। जैसे रिसर्च में निर्देशक देते हैं और रिसर्चर जो होते हैं उनका पालन करते हैं, उससे सलाह देते हैं, मशविरा लेते हैं, समय समय पर उनसे ज्ञान की बातें सीखते हैं। इसी तरह यहाँ पर है प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। योजना विधि, परियोजना विधि, प्रैक्टिकल विधि। इसके जनक हैं W.S. किलपैट्रिक। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चे उद्देश्य को लेकर योजना बनाते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, और यह भी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं व्यक्तिगत और एक होते हैं सामूहिक। व्यक्तिगत अर्थात कुछ टॉपिक आपको दे दिए, आप उस पर काम करेंगे, और सामूहिक हुए जिसे हम लोग बीएड में माइक्रो टीचिंग के नाम से करते हैं। 12 को 15 का ग्रुप बना दिया जाता है और उसमें किसी प्रकार का कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें 12-15 बच्चे शामिल होकर के उसमें अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। जैसे अभी हम एक प्रोजेक्ट विधि के तहत आप लोग से काम करवाएं। मनोज जी सर आपके
प्रोजेक्ट विधि में आप ही से काम करवाना है, क्योंकि आपके अंदर में वह शक्ति निहित है, उसको जागृत करना है। तो वही शक्ति बच्चे के अंदर में भी आता है, और बच्चे के अंदर में जब रहता है तो बच्चे का भी विकास होता है। तो यहाँ पर वह विधि हम करवाएंगे आगे। उसके आगे है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी बहुत प्राथमिक खंड के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, जिसमें बच्चे को नाच गान दीवार पर चित्र लगा करके चित्र दिखा करके उसका शिक्षा के असर को करवाया है। अपने यहाँ भी बहुत बड़ी सुविधा है छोटे बच्चों के लिए, और होना भी चाहिए। इनके जनक है डॉक्टर मार्टिया मॉन्टेसरी, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, वह इटली के रहने वाले थे। उन्होंने कहा जो बच्चे का विकास तभी हो सकता है जब वह मॉन्टेसरी विधि से पढ़े। इसीलिए आजकल जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें मॉन्टेसरी पद्धति पर ज्यादा बल दिया जाता है, और इसमें बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष तक हो। बच्चे को शिक्षा इस तरह दिया जाए जो पहले वह लिखना जाने, उसके बाद पढ़ना, अर्थात पहले हम लिखना उसको प्रारंभ करेंगे और तब उसका पढ़ना। इसको साहचर्य विधि भी कहते हैं। साहचर्य मतलब हुआ दोनों एक साथ, लिखना और पढ़ना, क्योंकि लिखना पढ़ना जब तक नहीं होगा तब तक भी साहचर्य विधि का कोई उपयोग नहीं। तो इन्होंने भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया। अब भाषा की शिक्षा पर सर्वप्रथम बल दिए कि बच्चे में मातृभाषा जो होती है वह सबसे उपयुक्त चीज होती है, क्योंकि बच्चे सर्वप्रथम मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर हो सकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, इसमें क्षेत्रीय भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है प्राथमिक खंड। इसमें क्या होगा, बच्चे के अंदर में अब भाषा के प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई कठिनाई उसको महसूस नहीं होगी। वह अपने भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे, और भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका विकास बहुत अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि कोई दूसरा भाषा हम पर तो पाता है और वह अपनी भाषा में पढ़े, उस भाषा में उसका रुचि ज्यादा बढ़ेगा और उसका ज्ञान का स्तर भी बढ़ेगा। अब है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। हम लोग के यहाँ भी कर्म पर आधारित शिक्षा दी जाती है। हमारे विद्या भारती में भी कर्म की शिक्षा दी जाती है, जैसे साफ सफाई, क्या कहते हैं, रंग रोगन इत्यादि को लेकर के हम लोग भी जब प्रशिक्षण ले रहे थे तो उस समय कर्मेंद्री की शिक्षा किए थे वहाँ पर मुजफ्फरपुर में। तो इसी को उद्देश्य लेकर हो सकता है नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी गई है, जैसे दरवाजा की सफाई, पंखा की सफाई, पोछा लगाना, बच्चे में कुछ सीखने की ललक हो, खाना बनाना, चाय बनाना इत्यादि कर्म जो है उनको कर्म क्या आता। यह नहीं, आजकल क्या होता है, बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसको खाना बनाने नहीं आता है, अपने शरीर की देखभाल करने नहीं आता है, तो उनसे क्या होगा, तो उनका विकास कैसे होगा। इसीलिए मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत ही कर्मेंद्रियों की शिक्षा है। अब है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। यह हमारी प्राचीन पद्धति में है, ज्ञान पर जो आधारित इंद्रियां है। तो बच्चे को अनुभव होगा, यह मेरा कान है, यह मेरा मुंह है, यह मेरा नाक है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा क्या कहते हैं चमड़ा है। तो इस तरह का जब उनके अंतर्गत विकास होगा, उनके अंदर में सब निहित उनका शारीरिक सौष्ठव बढ़ेगा, और शारीरिक सौष्ठव बढ़ेगा तो बच्चे का मानसिक स्तर जरूर ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत मैं एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जैसे हम लोग शांति मंत्र लिखते हैं। आपको यहाँ मैं थोड़ा देर के लिए पूरा नहीं लगे, आपको यहाँ मैं निर्देशक के रूप में हूँ, और आप सबसे विनय करता हूँ, अनुनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग शांति मंत्र लिखना प्रारंभ करें। उस पर अपना नाम पहले लिख देंगे, उसके बाद शांति शिक्षा क्या है, सा शिक्षा वृत्ति लाभ, वह शिक्षा जो हमें वृत्ति अर्थात रोजगार। इसी उद्देश्य को लेकर के विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में आजकल शिक्षा का जो रोजगारीकरण हो रहा है यही हो रहा है। तो इसके लिए व्यवसायिक निर्देशन केंद्र भी खोल दी जाए। महाविश्वविद्यालय में होते हैं व्यवसायिक निर्देशन केंद्र। जब मैं पटना विश्वविद्यालय में जूनियर रिसर्च फेलो था, वहाँ पर देखते थे विश्वविद्यालय सामने था व्यवसायिक निर्देशन केंद्र।
तो यह विद्यालय से ही खुलना चाहिए। और यही नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत है, जो बच्चे को क्लास 6 से 8 तक के बीच में ही उसको उस रोजगार के प्रति, उस उद्देश्य के प्रति ध्यान बढ़ा दे, जो बच्चे के मन के अंदर में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं, क्योंकि बच्चे भी समझदार होते हैं और उन्हें भी रोजगार की चाहत होती है। इसलिए रोजगार युक्त शिक्षा हो। व्यवसायिक निर्देशन में बच्चे के गुणों का विकास होता है, जिससे छात्रों को आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसमें सलाह दिया जाता है छात्रों को, जैसे कोई इंटर कर लेता है, अब उनको क्या करना चाहिए। जैसे अपने यहाँ काउंसलर की व्यवस्था है CBSE के द्वारा, तो काउंसलर के माध्यम से उनको सलाह दिया जाता है। कोई अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, कोई भाषा के हैं, कोई कॉमर्स के हैं, कोई क्या कहते हैं सोशल साइंस के हैं, साइंस के हैं। तो जिस विषय में बच्चे का ज़्यादा रुचि हो, बच्चे को उस दिशा में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी के भाग को नहीं जानता है। तो इस तरह से उनका जब होता है तो बालक विभिन्न विषयों के अध्ययन में रुचि लेगा, उनके मन के अनुरूप शिक्षा होगा तो स्वतः है उनका स्तर भी बढ़ेगा और बौद्धिक विकास भी होगा। यदि अच्छा विकास होगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अर्थात टेंशन फ्री होकर के वह एजुकेशन प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक होता है दबाव लेकर के पढ़ना और एक होता है दबाव युक्त पढ़ना। दबाव के अंदर दबाव रहित पढ़ना, दबाव उसमें कुछ नहीं हो, दबाव सहित और दबाव रहित दो शब्द है। तो दबाव सहित जब हम पढ़ेंगे, कोई भी काम करेंगे, हमारे मन के अंदर में घुटन महसूस हो, क्योंकि वह सिर्फ एक प्रैक्टिकल रूप में होता है। लेकिन दबाव रहित यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा स्तर ऊंचा बढ़ेगा। अगला पॉइंट है संवेगात्मक सुरक्षा की व्यवस्था। अब है मानसिक स्वास्थ्य के लिए समुचित संवेगात्मक विकास अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर संवेग अर्थात व्यवहार, उसका इस प्रकार से संवेग, इस प्रकार से व्यवहार जिसमें उनका समुचित विकास। यदि संवेगों में संतुलन नहीं है तो बालकों के मन में मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होगा। फिर वही बात है, तो बालकों के मन में तभी द्वंद्व होगा जब उनके अनुसार वह कार्य नहीं होगा। यदि कार्य होगा तो उनके अंदर में किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, भय उत्पन्न नहीं होगा। वह भय रह करके शिक्षा ग्रहण करेगा, और जब भय रह करके शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। बालकों के मन में मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होगा और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब भी उनके मानसिक दबाव होगा तो उनके स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है जहाँ स्वस्थ तन है वहीं स्वस्थ मन बसता है। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। बालक के संवेगात्मक संतुलन के लिए आवश्यक है कि सहानुभूति और प्यार से शिक्षा दी। जैसे प्राचीन समय में उपनिषदकालीन युग में शिक्षा दी जाती है, ये गुरु के समीप बैठकर, गुरु के उपनिषद, यहाँ पर इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा देना। प्राचीन विधि को ही अपनाना है कि बच्चे में यह नहीं हो यह मेरा छात्र है, बच्चे के अंदर में यह हो जाए जो यह मेरे जो गुरु हैं वो हमारे लिए सब प्रकार से क्या कहते हैं, सब प्रकार से तत्पर है। इनको कोई भी काम करेंगे तो यह काम करेंगे तो यह कर देंगे। इसीलिए बच्चे के अंदर में हमेशा उनको सहानुभूति देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे का आंतरिक विकास होगा, और आंतरिक विकास होगा तो उनका मानसिक विकास भी जरूर होगा। क्योंकि जब तक आंतरिक विकास नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में, अंतः विकास नहीं होगा तो बाह्य विकास कैसे होगा, यह सोचनीय विषय है। क्योंकि अंतः विकास के माध्यम से ही बाह्य विकास किया जाता है। जैसे प्राचीन समय में था, जो बच्चे आश्रम में रह करके पढ़ते थे, ना वहाँ कोई माँ पिताजी थे, सिर्फ गुरु और गुरु माता रहते थे। तो गुरु माता और गुरु जी जब रहते थे तो उनके अंदर में यह बोध नहीं होता था, यह भय नहीं होता था जो हम परिवार से पिछड़े हुए हैं, और हम परिवार से पिछड़े हुए हैं तो हम किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे।
क्योंकि जब उनके मन में यह बात हो जाएगा, डर हो जाएगा, भय हो जाएगा, तो उनका शैक्षिक स्तर जो है वह ऊंचा नहीं बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा ही भय रहित है। वैसे तो सब काम भय रहित करना चाहिए, क्योंकि जब हम भय रख करके कोई काम करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए भय रहित होकर के काम करना चाहिए। अपने अंदर से डर नाम का शब्द ही हटा देना चाहिए, क्योंकि निडर बनना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निडरता जरूरी है। पहले ही हम देख लेंगे यह जो पाठ्यक्रम है यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो हमारे अंदर में क्या होगा, एक प्रकार का मन में द्वेष होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम बच्चे को सहानुभूति से शिक्षा देंगे। यहाँ पर एक वीडियो है 2 मिनट का, देखिए इसमें माता किस प्रकार से अपने बच्चे को खाना बनाते हुए शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कराते हुए शिक्षा देती है। अंदर ने अपनी चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया, जैसे वो
अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसे ऊर्जा के साथ नीचे को अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है, मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। इसमें यहाँ दो तत्व है, एक है खाना बनाने की विधि और दूसरा है संगीत की विधि। इसीलिए हमको आचार्य को भी, शिक्षक को भी क्या करना चाहिए, सहानुभूति देना चाहिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यदि हम सत्य बोलेंगे तो बच्चे भी सत्य बोलेंगे, यदि हम असत्य बोलेंगे तो बच्चे हमसे लाख गुना ज्यादा। यही उसके बाद है धर्मम चरम, अर्थात धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। अब हम है शिक्षक, मेरा काम है शिक्षण देना। तो जब हम धर्म के अनुसार काम करेंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, अपने धर्म, बच्चे का धर्म क्या है, अध्ययन करना, वह उसी के अंदर में काम करेंगे। और है स्वाध्याय प्रमद, अर्थात अपने स्वाध्याय में प्रमाद करते रहे, उसी में विचरण करते रहे। अब ऐसा नहीं है कि इस भौतिकवादी युग में हम दुनियादारी को कैसे छोड़ दें, लेकिन सर्वप्रथम है अपने स्वाध्याय में रख करके शिक्षा को ग्रहण करना। यह तीन वाक्य जो है उपनिषद युग, इन तीनों बातों को जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए बच्चे के मन के अंदर, जिनसे उनका विकास हो। अब है छात्रों के कार्यों को समुचित मान्यता। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाल मनोवैज्ञानिक का मत है कि मानसिक द्वंद्वों का कुसुमायोजन से बालकों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो यह सही है, जब उनके अंदर में द्वंद्व होगा तो उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वह ज्यादा बिगड़ जाएगा। प्रत्येक छात्र अपने कार्यों की मान्यता चाहता है। इस तरह हम लोगों के बीच में हो रहता है, हम यह कार्य सीना चौड़ा कर देते हैं। उसी तरह बच्चे के अंदर में भी यह भाव होता है, हम अच्छा काम किए हैं तो हमारा शिक्षक जो है हमको प्रोत्साहन करे, और वह प्रोत्साहन चाहे 1 रुपया का हो कि 1 लाख का हो, बात बराबर है। जब उसे यह मान्यता नहीं मिलती तो उसके संवेग को ठेस पहुंचती है, अर्थात संवेग मन को ठेस पहुंचता है, मन में दुखी होता है। उनके विपरीत जब ही कार्य होगा, स्वाभाविक है कि बच्चे मेहनत किए बहुत और उनके अनुरूप अंक लाए और हम उसका सम्मान नहीं किए तो फिर उसके अंदर में द्वेष उत्पन्न होगा, ठेस पहुंचेगा, हो सकता है उसके अंदर और किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचे और वह असामाजिक बातों की ओर आकर्षित हो जाता है। जब उनका ध्यान भंग होगा, वह सोचेगा हम इतना मेहनत करके इतना अंक लाए, ना हमारा घर में सम्मान मिला, ना हमारा विद्यालय में सम्मान मिला, ना समाज में मिला, तो फिर तो उसको कष्ट होगा और कष्ट जब होगा सोचेगा पढ़ करके क्या होगा, पढ़ करके क्या होगा, तब फिर असामाजिक संस्कृति वह चली जाती है, गलत लोगों के संपर्क में चले जाने पर वह गलत कार्य करने लगता है। अतः इस बात की मान्यता है कि विद्यालय में छात्रों के कार्यों को समुचित मान्यता प्राप्त हो और उसमें मानसिक द्वंद्व का कुसुमायोजन न उत्पन्न होगा। अब विद्यालय की बड़ी जवाबदेही है, जो बच्चे अच्छे अंक लाते हैं उनको पुरस्कार जरूर देना चाहिए, उनको सम्मान जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। नहीं तो जैसे ही आप उसको सम्मान नहीं किए, मान लीजिए कोई बच्चा 100% लाता है, उसको यदि आप सम्मान नहीं किए तो उसको कष्ट पहुंचेगा तो हो सकता है वह शिक्षण विधि को त्याग करके कुछ गलत विधि अपना, जिससे उनका परिवार, विद्यालय, हम और आप सभी परेशान हो सकते हैं। अब है यहाँ अच्छी आदतों का निर्माण।
मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। अच्छी आदत किस प्रकार से उत्पन्न होगा? कहीं दुकान में तो मिलता नहीं है, पैसा देकर के खरीदिए। अच्छी आदत है जो हम अच्छे पुस्तकों को पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे वाणी सीखें, अच्छे समाज के लोगों से संपर्क करें। इससे क्या होगा? उनका ज्ञान का स्तर जो है वह और बढ़ेगा। बालकों को, शिक्षकों को बालकों में नियमित जीवन, संतुलित खान-पान और सादा जीवन उच्च विचार की आदतें डालने का अभ्यास करना चाहिए। अब शिक्षक का भी दायित्व है कि बालकों के अंदर में हमेशा उनको ऊंचा उठाना चाहिए। जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं उनको भी कहना चाहिए तुम 95% नंबर लाएगा। बार बार कहेंगे तो उसका मन जरूर प्रभावित होगा। हो सकता है 75% नंबर नहीं लाए, 95% नंबर नहीं लाए, 75% नंबर लाए, 70% नंबर लाए। क्या हुआ? उसका शैक्षिक स्तर का ग्राफ जो है वह ऊंचा बढ़ेगा, और जब वह ऊंचा ग्राफ बढ़ेगा तो विद्यालय के साथ साथ उसका परिवार भी प्रसन्न रहेगा। क्योंकि अच्छी आदत का निर्माण सिर्फ विद्यालय से नहीं होता है, परिवार से भी होता है। विद्यालय में सिर्फ 6 घंटे की शिक्षा दी जाती है, लेकिन शेष जो 18 घंटे है वह परिवार के बीच में बचे रहते हैं। इसलिए परिवार के लोगों का भी वातावरण अच्छी आदत युक्त होना चाहिए। अब हमारे माँ पिता यदि 12 बजे रात्रि तक टेलीविजन का उपयोग करेंगे, बच्चे क्या करेंगे? इस पर भी सोचना चाहिए। अब है शिक्षक अभिभावक परिषद की व्यवस्था। बालक की शिक्षा में परिवार में अभिभावक का विशेष योगदान होता है। किसी भी परिवार में, किसी भी कार्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है अभिभावक कार्य। इसलिए बालक के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर समय समय पर विचार विमर्श करना चाहिए। बालकों के अभिभावक और शिक्षकों को समय समय पर बैठ करके उनके समस्या का हल निकालना चाहिए, जिनसे क्या होगा? बच्चे का मानसिक विकास होगा। और इस कार्य के लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिभावक परिषद की स्थापना की जाएगी। जब विद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिभावक परिषद की स्थापना होगा तो समय समय पर बैठकें होगी, तो उसमें बच्चे का जो समस्या से ज्यादा गार्जियन को तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे तो एक सिर्फ मार्ग है, लेकिन उसके अभिभावक, शिक्षक और अभिभावक दोनों है उसके मार्गदर्शक। बच्चे है मार्ग और शिक्षक अभिभावक होते हैं मार्गदर्शक। इसीलिए इस तरह विद्यालय स्तर पर शिक्षक और अभिभावक परिषद की जब स्थापना होगी तो बच्चे का विकास स्वतः होगा। अब लास्ट एवं सबसे अंतिम पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श। अब समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर में क्या है, नहीं है, उसका विकार निकलेगा, और जब विकार निकलेगा तो उनसे क्या होगा? समस्यात्मक बालक जो होता है तो 2-4 हो जाते हैं किसी भी विद्यालय संस्था में, 2-4 समस्यात्मक बालक। वह समस्यात्मक बालक हुआ है तो हरकत नहीं, उसके अंदर में कुछ गलत वृत्ति हो, तो उस वृत्ति का परामर्श शिक्षक से नहीं हो पाएगा, शिक्षक उसका निराकरण नहीं कर पाएगा। उसके लिए विशेषज्ञ, कौन विशेषज्ञ? मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, सब दिखा सके। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एक पद होते हैं, बिहार सरकार के द्वारा भी हर एक अस्पताल में उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको बुलाना चाहिए और उनसे उपचार की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। यह विद्यालय का दायित्व है, इसीलिए विद्यालय में भी इस प्रकार की गतिविधि होना चाहिए। और इस तरह से आज जो मेरा मुख्य शीर्षक था बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में विद्यालय की भूमिका, इसमें आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक सुना, और श्रद्धापूर्वक सुनने के हेतु मैं आप सबों को कोटि सा नमन करता हूँ और विनय करता हूँ कि इसी तरह अगले सत्र में भी आप लोग शांति होकर जुड़े और अपनी शिक्षण वृत्ति को आगे बढ़ाएं। Like to also congratulate him for his coming future, and I would like to just congratulate him for becoming a good resource person for the CBSE in promoting health in schools। ये बच्चों से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बच्चों की जब तक मानसिकता को हम नहीं समझ सकते तब तक हम एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते।
तो अभी 5 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद पुनः हम लोग दूसरा सेशन में दूसरा टॉपिक करेंगे। ठीक 5 मिनट के अंदर में हम सभी पुनः अपने स्थान पर आ जाएंगे। तब तक कुछ उसमें जो चेंजिंग है तब तक I would like to welcome all our teachers for the second session. It is going to be a very interesting session because the topic is a very interesting role of drama and theatre in classroom. The greatest dramatist and playwright William Shakespeare said, "Life is a drama. The world is a stage. Men and women are mere players, and they play the role of everything." And what is the role of drama? Teacher is the best in the classroom for the class and for the students. And the role of drama, the role of acting in the classroom makes us, the students, very interesting for the learning. And without different types of learning, we can say the teaching is the very informative. So, in this session, I would like to invite Mr. Rajesh Kumar Misra to work as a resource person, and his role as a resource person is going to be the very informative and very interesting because the subject is suited to him because he is the teacher of music and literature. So, once again, give him a big hands. Just welcome him on the stage. And I would like to invite Mr. Rajesh. Thank you. सबों को मेरा नमन।